Hello everyone, this is Ansul Kumar Chandan from KBS Public School and I have started spoken class for the student of class 6 and above. In this class, we will try to make you understand about how to read, how to speak without any grammatical use. You can speak English. आप कहेंगे कि विदाउट ग्रामर हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है। आप देखेंगे कि हम लोग बेसिकली बहुत सारे लोग जो इलिटरेट होते हैं हमारी सोसाइटी में, दे डोंट नो हिंदी ग्रामर, इवन देन दे स्पीक हिंदी। सेम वे इफ़ यू डोंट नो बेसिक ग्रामर डजेंट मैटर, यू कैन स्पीक इंग्लिश। एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है, बिकॉज आई एम टेकिंग ट्यूशन ऑफ मेनी स्टूडेंट्स in my tuition of different school, then I'm getting problem that they are not able to read properly their English book, because all the syllabus, all the books are in English, whether it is math, science, social science, except हिंदी ग्रामर, संस्कृत। सो अब आप लोग में से कुछ बोलेंगे कि देर इज़ नो नीड टू लर्न इंग्लिश, हम लोग को हिंदी आना चाहिए, बिकॉज हिंदी आप भुला भी नहीं सकते। दिस इज़ आवर मदर टंग, सो देर इज़ नो नीड टू लर्न इट। सोसाइटी विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट हिंदी। सो द थिंग्स वी हैव टू लर्न, इफ़ दे आर एबल टू रीड, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट थिंग्स, कि इसका मीनिंग क्या होगा। पढ़ तो पा रहा है पर उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है उसको, कि वो इसका मीनिंग क्या होगा। तो और ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं, every parents near about whoever is able to afford are trying to make their child good speaker, good educated person, and they are just finding the private school instead of government school. Yes or no? And whoever is able to earn a sufficient amount are taking their child to the private school. But this is the responsibility of the school to make the child understand the topic, whatever they study, because all the topics are mentioned in English. Syllabus, completion of syllabus is not only the part of study, but whatever the student is getting, that should be grabbed, that should be understood, it should be the part of study. So to make this easy, I'm just trying to make the students a good speaker of English. They will read the topic properly, they will read the book properly, and all the words should be pronounced properly, means pronunciation should be also correct. Next is, whatever they are reading should be understood by the student. This is very important, because आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वट एवर द टॉपिक इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास, ऑल द क्वेश्चंस आंसर आर completed by the teachers. Word meaning left. Paragraph, every paragraph need a proper translation in Hindi, because English is not our mother tongue, so we cannot directly understand. A stage will come, the student will understand in English, but at the beginning, the teachers, this is the responsibility of the teachers, that they should try to make, not to complete the syllabus, but to complete the chapter. आप एक बात समझेंगे, अभी हमने क्या किया, एक स्टोरी पढ़ाया बच्चा को, एक स्टोरी पढ़ाने के बाद उस स्टोरी को हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, बच्चा पैरोटेड है, वो कैसे भी मेहनत करके टीचर्स के डर से, वट एवर द रीजन, वो लर्न कर लेगा। एग्जामिनेशन के डर से पेरेंट्स भी इसी पे फोकस कर रहे हैं। पेरेंट्स आर ऑल्सो जस्ट इम्पोजिंग ऑन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द स्टूडेंट, लर्न इट, एग्जाम इज कमिंग वेरी सून, एंड नहीं समझ में आ रहा है तो बी ए पैरोट, वट एवर रिटन इन द बुक्स और कॉपीज, जस्ट लर्न इट एंड गिव योर एग्जाम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, आप 10 दिन के बाद, विद इन 10 days, if you are asking the student the same topic, he has forgotten everything. उसने सारी चीज़ों को भुला दिया,
व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, क्या रीज़न है? वो उसको कौन से तरीके से पढ़ा, उसको ग्रैप नहीं किया, उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया, उसने सिर्फ उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही पढ़ा, जो उसको रट्टा मारा, और ही हैज़ रिटन इन एग्ज़ाम, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम एवरीथिंग इज़ इरेज्ड. सो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ द बर्डन फॉर द स्टूडेंट. हमने सोचा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, स्टूडेंट्स एवरेज फैमिली हैव स्मार्टफोन एंड दे आर यूजिंग देयर स्मार्टफोन, दे विल प्रोवाइड द स्टूडेंट एंड दे विल लर्न फ्रॉम देयर. बट ये रीज़न आप देखेंगे 99% ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग और डूइंग स्टडी विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल. डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न यही है, सपोज दैट हम 2 प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट्स में हम सैलड लेते हैं और सेकेंड प्लेट में हम सिंपल घर का खाना लेते हैं, उसको भी हटाइए. आप एक प्लेट में सैलड लेते हैं और दूसरे प्लेट में आप गुपचुप ले लीजिए. अब बच्चे को बोलिए कि जो मन हो खा लो, यू नो, वो गुपचुप खा लेगा, चाउमीन खा लेगा, पास्ता खा लेगा, सैलड नहीं खाएगा. बट टेल मी द रीज़न वाई, विच इज़ द हेल्दियर वन, सैलड और पास्ता? सैलड. द रीज़न इज़ दैट मोबाइल हैज़ एवरीथिंग, but if you are providing mobile to them, they are using pasta, Maggi, gupchup, whatever these things. These are junk food. So we need to prepare our teenagers, our student, to nurture them in a such a way that they should grab. तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को रूट आउट करने के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जहाँ क्लास 6 से, फ्रॉम क्लास 6 टू 10th 11th 12th वट एवर, ग्रेजुएशन, कोई महिला है, कोई ऐसे फैमिली जॉब करते हैं जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम लास्ट 8 years and I had also spoken class. I have continuously run it in Baria Chowk for 4 to 5 years, and after that I shifted in Ranchi, that's why I closed that. So whoever getting problem in this language, I will try to make them understand this is the course of only 6 months, and within 6 months you will be able to communicate in English, you will able to understand English. And I'm not just giving you 100% security, but we will try 100% to make your English more fluent. Whatever you have today, it will increase from that stage. Thank you.